So, hello everyone. My name is Justice, and I'm your English trainer. Today we are practicing the models, and we'll be also practicing conditional clauses if we get time. So, yesterday we had already talked about some of the sentences using some new concepts as well. I'll be asking you few questions in Hindi, and you'll be translating it in English. Right? I'll be giving you sentences, you'll be translating. So yesterday we talked about one another model or application based model, like something added with that model. The model is would, and we have come to know like how would we work with would rather, right? So let me ask a question to you. If I ask you for this translation, like मैं गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा, how would you translate this? मैं गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा. Translate this one. My voice is not clear. Wait a moment. Is my voice clear now? मैं गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा. Translate this one. मैं गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा. I would like to sleep except singing. Savitri ji, you did not attend yesterday's class. Let me know the reason. Yes. Anamika ji, I would rather sleep than sing a song. Than sing a song. Something else. Hmm. All right. मैं गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा. Everyone try to do this. मैं गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा. So hmm, we have received the answers from you, like Deepa ji, Atul ji, Mayank ji, Savitri ji, Anamika ji. Hmm. Yes, according to the usage which I told, that is would rather and action word verb one and then plus verb one, or anything like any other stuff. So I would rather sleep than sing. Sing a song, that can also be correct. गाना गाने के बजाय सोना पसंद करूंगा. सॉरी, सोना पसंद करूंगा. I would rather sleep than sing. I would rather sleep because you are choosing sleep over singing, right? Then THAN, not THEN. Remember, you will be doing THAN because that then will be used in that case. Otherwise, THEN, that means after that, or tab. We will be using THAN. So I would rather sleep than sing a song. Okay, let me tell you one more thing. This can also be done in this way, same format. But you can also do this. I would rather sleep than singing a song. Okay, singing. That is also correct. Than singing. Because after then, like the general rule can also be applied. Like I told you when I was teaching you about daily routine, that after that
देन THEN वाला देन, उसमें हम ING फॉर्म कर देते, बिफोर वी यूज टू यूज ING। सो देन के बाद ING फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। Why this one is correct? Because this is the general way I told you, as in the models, right? Would rather. Both are grammatically correct. I would rather sleep than sing a song. Okay. Or um, I would rather sleep than singing a song. Okay. One is with gerund and one is without gerund. And one more thing you can do in this case, pasand karunga. So I would rather like to sleep than sing a song. That is also correct. But I told you yesterday, you are using rather already. So you need not to use like to, because already choice is made between two stuff. Right? Situation one, situation two. You have chosen situation one over situation two. Situation one is to sleep, and situation two is to sing. Right? Well done. One more example. Do this. वह यहाँ आने की बजाय घर पर रहना पसंद करेगा। घर पर रुकना पसंद करेगा और रहना पसंद करेगा। रुकना, रहना, बने रहना, स्टे, यू कैन यूज स्टे, STAY। डू इट फास्ट। वह घर पर, नहीं, वह वहां जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करेगा। दीपा जी इज आंसरिंग, he would rather stay home than come. Anyone else? सावित्री जी, he would rather stay home than come here। वह, और सेंटेंस, वह वहां जाने की बजाय घर पर रहना पसंद करेगा, और वह यहाँ आने के बाद, आई फॉरगॉट द सेंटेंस। अगर जाने की बजाय है तो गोइंग, गोइंग देर कर सकते हैं। THAN, देन, नॉट THEN, अतुल जी। वह यहाँ आने की बजाय घर पर रहना पसंद करेगा, ही वुड रेदर स्टे होम देन कम हियर, और देन कमिंग हियर इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, राइट। So in this way you'll be doing this. Now one more thing I would like to tell you. हम बहुत बजाय बजाय कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक चीज याद आ रही है मुझे। बी, बिसाइड और बिसाइड्स, दो चीजें होती हैं, बिसाइड और बिसाइड्स। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो बिसाइड, BESIDE होता है, लिख लेंगे इसको। BESIDE, बिसाइड का मतलब, डज एनीवन नो व्हाट डज इट मीन बाय बिसाइड? किसी को पता है? बिसाइड का मतलब आपका होता है किसी चीज के बगल में, बगल में, पास में, इनसाइड ऑफ। यस सावित्री, इनसाइड ऑफ, करेक्ट। बिसाइड मीन्स बगल में, इसको लिख लेंगे BESIDE। बिसाइड मीन्स बगल में, और इसी में स्पेलिंग में बस एस लग जाता है, BESIDES, बिसाइड्स। इट मीन्स एक्सेप्ट समथिंग और अपार्ट फ्रॉम समथिंग। हिंदी में लिखेंगे बजाय, के बजाय। तो बिसाइड की हिंदी लिख लेंगे आप, के बगल में, है ना। एंड बिसाइड्स मीन्स एक्सेप्ट, करेक्ट सावित्री जी। बिसाइड्स मीन्स के बजाय लिख लेंगे, इंस्टीड ऑफ या फिर अपार्ट फ्रॉम समथिंग, है ना। तो बिसाइड, BESIDE, बिसाइड मीन्स हो गया नियर समथिंग और नेक्स्ट टू समथिंग, एट द साइड ऑफ समथिंग, राइट, इन द साइड ऑफ समथिंग।
है ना, जहाँ पे पोजीशन है, फिजिकली आप कहीं पर हैं तो किसी के बगल में कोई चीज रखी है तो बिसाइड, और अगर किसी के बजाय तो बिसाइड्स। सिंपल से एग्जांपल से समझे। एम आई ऑडिबल? यस। सो आई वाज टेलिंग यू विथ these two words, beside or besides. So beside means next to or near, right? Or besides mean in addition to, apart from something, or mm, except something, instead of something. Okay. So write an example with this, you will understand beside, and with another example, you will be understanding besides. So वह मेरे बगल में बैठा था, वह मेरे बगल में बैठा था, वह मेरे बगल में बैठा था। कैन यू गेस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस? ही सिट, नो, बैठा था विष्णु जी, बैठा था, वह मेरे बगल में बैठा था। अतुल जी, ही वॉज सिटिंग beside me, can't deny, that can be correct. Anything else? He was sit beside me, no, that's incorrect. Savitri ji, he sat beside me would be correct, or he was sitting beside me. Yes, Anamika ji, that's correct, he sat beside me, वह मेरे बगल में बैठा था। He sat beside me, or he was sitting beside me, that is also correct. Yes, Deepa ji, he was sitting beside me, that is also correct. वह मेरे बगल में बैठा था। नेक्स्ट सेंटेंस, थिंक अबाउट दिस। उसने चाय के बजाय कॉफी पी। ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, सर क्यों नहीं हो सकता है? ऑफ कोर्स मैंने बोला हो सकता है। सिट क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, सिट, वॉज सिट क्यों नहीं हो सकता? दैट्स ओके, बिकॉज सिट, सिट इज used here as a verb first. So after was we are not using, or after any be form we are not using, we do not use verb one. Okay, that is the reason. Was, were, is, am, are. After this we cannot use verb one. हमने बताया इस पे बात ऑलरेडी की है कि बी फॉर्म जब भी आता है तो बी फॉर्म के जस्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी यूज कर ही नहीं सकते, राइट? हाँ, अगर आप सिंपल पास्ट में ले जाना चाहते हैं सेकंड फॉर्म के साथ जा सकते हैं जनरली, लेकिन वॉज नहीं आएगा। ही सैट बिसाइड। यस, उसने चाय के बजाय कॉफी पी या पी थी। He took coffee besides tea. Anamika ji is answering this, and she also answers. He drank coffee besides tea. Okay. अतुल जी, he drank tea. चाय के बजाय कॉफी पी, मैंने ये बोला था ना। He drank coffee besides tea. Yes. In case of tea or coffee, you generally use take or have. You do not use drank. Okay. Drink. So, what is the second form of have? Had. You can use that. Or what is the second form of take? Took. You can use that. So, I would prefer these answers. He took coffee besides tea, because मैंने ये बोला था कि उसने चाय के बजाय कॉफी पी। तो जो जो उसने पिया, जिसको उसने चूज किया उसको पहले लिखेंगे, और जिसके ओवर चूज किया उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, जैसे वुड वुड रैदर में यूज किया था ना, कि तुम क्या लेना चाहोगे, कॉफी लेना चाहोगे, चाय लेना चाहोगे। आई वुड रैदर टेक कॉफी देन टी। ठीक है, देन टी। तो यहाँ पर आपने ये कर ऐसे इसमें ये भी कर सकते हैं, ही टुक कॉफी बिसाइड्स टी, और ही हैड कॉफी बिसाइड्स टी, बिकॉज I told you the alternative way to say take is have. So second form of have is had. Had. He had coffee besides tea, or he took coffee besides tea. Okay. Correct.
ड्रैंक वाला भी सही है, बट वो ज्यादा ही ट्रेडिशनल इंग्लिश हो जाएगा, बट उसके साथ हम जाना नहीं चाहेंगे। जनरली हम यूज नहीं करते मॉडर्न इंग्लिश में ड्रिंक, ड्रिंक का कॉफी या टी के साथ। ओके, जनरली वी डू नॉट डू दैट। नेक्स्ट, टेल मी, आओ और मेरे पास बैठो। टेल मी दिस, आओ और मेरे पास बैठो। आओ और मेरे पास बैठो, या मेरे बगल में बैठो। आओ और मेरे बगल में बैठो। सावित्री जी एंड अतुल जी, मयंक जी, कम here and sit here. Hmm. On the basis of sense, I can't deny that, but I'm asking, आओ और मेरे बगल में बैठो। आओ, come here, right? Okay, on the basis of sense, that is correct. आओ और मेरे बगल में बैठो। The preference I would give to this answer, those who have written, come and sit beside me. Simple. Okay. Second preference, come here and sit beside me. मेरे बगल में बैठो, you will be using beside. Come and sit beside me. Okay. So from here we jump into another concept, that is of imperative sentence. Okay. समझेंगे imperative sentence क्या होता है। जब भी आपको कोई चीज डायरेक्ट बोलनी होती है ना, सजेशन देना होता है किसी को डायरेक्टली, या किसी को ऑर्डर देना होता है, कमांड देना होता है, या किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, तो आप imperative सेंटेंस का यूज करते हो। ठीक है, imperative सेंटेंस लिख सकते हैं आप, IMPERATIVE, imperative सेंटेंस, IMPERATIVE, सेंटेंस, SENTENCE। समझेंगे इसमें imperative सेंटेंस में क्या क्या आप कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट डाल लेंगे इसमें, क्या हो, एक्सप्रेस होगा। These sentences expresses, नहीं, these sentences express, क्या करेंगे एक्सप्रेस ये, या तो रिक्वेस्ट करेंगे एक्सप्रेस, रिक्वेस्ट, या तो कमांड करेंगे, कमांड मतलब ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, और एडवाइस, सजेशन भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, समझेंगे आप इसको। तो अब यहाँ पर आप समझेंगे मेरी बात को। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो हिडन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट कभी नहीं होगा, जैसे बोलेंगे ये कर लो, वो कर लो, डू दिस, डू दैट, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, इस तरह से होगा। तो स्ट्रक्चर आपका बहुत ही सिंपल होगा। वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या करेंगे, V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये रहेगा आपका। पॉजिटिव, नेगेटिव में डाल लेंगे स्ट्रक्चर आप, ये तो पॉजिटिव का हो गया। नेगेटिव में आप करेंगे डू नॉट या डोंट, डू नॉट या फिर डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इम्परेटिव का हम क्वेश्चन तो करते नहीं इसमें डायरेक्टली, या तो हाँ में जवाब देंगे या तो ना में करेंगे, ये कर लो या तो ये मत करो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझें। ऑलराइट, जब पोलाइट होता है तो वहां पे आगे प्लीज लग जाता है रिक्वेस्ट में। ठीक है, आप डाल लेंगे रिक्वेस्ट में, क्या करेंगे आगे बस प्लीज, पोलाइट या फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डाल लीजिए रिक्वेस्ट में, प्लीज ऑब्लिक काइंडली लगा लीजिए, प्लीज स्लैश काइंडली, प्लीज आएगा या तो स्लैश लगाकर काइंडली लिख लीजिए, स्लैश को ऑब्लिक बोलेंगे यहाँ पर, प्लीज और काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज ऑब्लिक काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। Now listen to me. Three categories basically you have written in this: positive, negative, and polite one, या फिर हम उसको रिक्वेस्ट वाला बोल सकते हैं। इस तरह से कैटेगराइज कर लिया, बाकी सजेशन भी आ जाएगा आपका, देखें कैसे आएगा इसमें आएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल डालिएगा हिंदी में, बैठ जाओ। यू ऑल नो द आंसर ऑलरेडी, तो काइंडली राइट इन कमेंट सेक्शन, बैठ जाओ की इंग्लिश क्या होगी, बैठ जाओ। एंड ऑल्सो टेल मी कि बैठ जाओ क्या है। इट इज कमांड, कमांड मतलब ऑर्डर होता है। ठीक है, कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन।
व्हाट इज दिस? जनरली क्या होगा ये? सिट डाउन जनरली क्या होता है? यस, अनामिका। इट इज व्हाट? सिट डाउन क्या है? सिट डाउन से याद आया होगा बचपन। टीचर comes in the class, we wish them good morning, good afternoon, and then he or she commands, sit down, children, good morning, very good morning, sit down. Okay, those days. So it is a command, it is an order. Okay, all right. Now somebody comes at your home. Okay, and you say the guest, कृपया बैठ जाइए. Translate this. कृपया बैठ जाइए. या कृपया स्थान ग्रहण करें. प्लीज सिट डाउन. कृपया स्थान ग्रहण करें. प्लीज हैव अ सीट. प्लीज बी सीटेड. राइट. प्लीज हैव अ सीट. काइंडली बी सीटेड. काइंडली सिट डाउन. You can also use please. In place of please, you can use kindly. Please have a seat. That's great. Tell me, what is this? Is this command, request, or an advice? Yes, that's great. It's a request. Very good. Okay. ये बताइएगा, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव्स. काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव्स. व्हाट इज दिस? कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन. यस, दिस इज ऑल्सो अ रिक्वेस्ट. राइट. वेल डन, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट छिपा होता है. कैन एनीवन गेस कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा होगा? किस पर्सन की बात होगी? जनरली किस पर्सन की बात होगी? विच सब्जेक्ट इज हिडन इन ऑल एग्जाम्पल्स? किस सब्जेक्ट से कहा जा रहा है, मतलब किससे कहा जा रहा है? सामने वाले से कहा जा रहा है. ऑफकोर्स, राइट. यू आर राइटिंग वेल. यू. सब्जेक्ट यहाँ पर सेकंड पर्सन. यस, दैट्स करेक्ट संगम जी. सेकंड पर्सन यू. जनरली इट इज स्पोकन टू सेकंड पर्सन, क्योंकि सामने व्यक्ति होता है, उसी का आप कमांड देते हो, रिक्वेस्ट करते हो या सजेशन देते हो. राइट. ओके. ऐसे ही आप बताएंगे मुझे. अ, अपनी सेहत का ध्यान रखो. ट्रांसलेट दिस वन. अपनी सेहत का ध्यान रखो. ध्यान रखना की टेक केयर होती है ना? या पे अटेंशन टू, ऐसे ही बोल सकते हैं. अपनी सेहत का ध्यान रखो. ट्रांसलेट दिस वन. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हेल्थ. ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. You are adding please. Okay. Take care of your health. Take care of your health. Tell me, what is this? Request, suggestion, or command? Take care of your health. It is a suggestion. Yes, that's a great advice. Good, nice, very good, well done. Okay, now we will be doing negative. झूठ मत बोलो. झूठ मत बोलो. Try this one. झूठ मत बोलो. Well done, doing well, everyone. झूठ मत बोलो. Don't tell a lie. Yes. It can be an order as well, and it can be a suggestion to someone as well. Generally, it will be considered as a command, order. Okay. Okay. Now, tell me. um, कृपया दरवाजा बंद मत कीजिए. कृपया दरवाजा बंद मत कीजिए. कृपया दरवाजा बंद मत कीजिए.
Please don't close the door or please do not close the door. That's correct. Atulji, you will be adding please or kindly. Okay. Because it is a polite way to say please. This is basically what? Request. For example, you feel suffocated in summer and somebody is closing the door. So you'll say, please don't close the door. Right? Like this. Please. Or you can also add please at the end. Remember this thing. Please can be shifted from beginning to the end as well. किसी भी चीज में जैसे sit down please है ना ऐसे भी बोला जाता है sit down comma please. Don't shut the door please. Don't close the door please. Okay. But in the case of kindly, kindly cannot be shifted. Kindly is generally used in the beginning. Kindly do not close the door or do not shut the door. But please can be shifted. Don't close the door, please. Okay. But kindly is generally not shifted. Place of kindly is not changed. Well done. Nice. कृपया यह फॉर्म भरें. फॉर्म भरना fill out. I told you yesterday. कृपया यह फॉर्म भरें. You can use kindly because you haven't used. Kindly is more formal than please. Remember, okay? If you are at an official place, try to use kindly in place of please. Kindly is more formal than please, okay? And more traditional also. Kindly fill out this form, okay? Generally, when you write an application, what do you use? Kindly or please? Tell me. Generally, in application of leave or anything, what do you use generally? Kindly or please? Tell me. Let me see. Yes. Generally, kindly is used. Okay. So from there, you get an idea that kindly is more formal than please. Okay. More polite. You can also say that please is polite as well, but kindly is more formal, more polite. Now next, डरिए मत, डरो मत. Translate this one. Don't dare वो तो होता है हिम्मत मत करो. Don't dare. अनामिका जी well done. Don't be afraid. Don't get afraid. Wow, that's also correct. Sohani ji, don't be scared. Wonderful. Listen to me. Whenever you feel like there is a word which is not a verb, that is non-verb, either that is noun or adjective. So in that case, what you will be doing? Either you are going with be or you are going with get, right? In the case of होने के संबंध में be is generally used, but in the case of कि कोई situation change हो रही है, condition change हो रही है, generally get can be used. In this case, both can be used. Don't get afraid. डरो मत. Don't get afraid. Don't be afraid. both are correct. कि उदास मत हो. Sorry. डरावने डरो मत ऐसा बन जाएगा. इसमें कुछ बन नहीं रहा. जैसे उदास मत हो इसका क्या होगा? This can also be done. Don't fear. Fear is a verb, so you can use that. That's okay. Don't fear is also correct. Don't get afraid or don't be afraid. उदास मत हो. Yes. Don't be sad. And second one. Tell me both. Yes. Anamika ji is writing. Don't get sad. That is correct. So this is the perfect example where you can understand क्या कंडीशन है यहाँ पे. है ना कि आप अभी खुश हैं, उदास हो जाते हैं, अभी कंडीशन बदल गई, दशा बदल गई. सो यू कैन ऑल्सो गो विद गेट. गेट जनरली यूज होता है जब कंडीशन चेंज हो रही है, ऐसा कुछ है तो. ठीक है. और बी जब आप कोई चीज है हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप उदास मत होइए. क्या हो गया? डोंट बी सैड. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. और आप समझ रहे हैं कि वो उदास हो जाता है, तो आप बोलेंगे डोंट गेट सैड. डोंट बी अपसेट. डोंट बी सैड. डोंट फील बैड. यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट इन द सेंस. ठीक है. डोंट फील बैड. डोंट फेल नहीं विष्णु जी, डोंट फील. दैट्स करेक्ट टू. ओके. डोंट बी सैड. ओके. ऐसे मैं बोलूंगा खुश रहिए, खुश रहो. टेल मी दिस. खुश होइए ये भी समझ लीजिए ऐसे भी. व्हाट विल यू डू? बी हैप्पी. हमेशा खुश रहो.
व्हाट विल यू डू दिस, डू इन दिस? हमेशा खुश रहो। मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग। यस। और केवल मुस्कुराइए देन। कृपया मुस्कुराइए। कृपया मुस्कुराइए। डू दिस। स्माइल प्लीज। फेमस डायलॉग। प्लीज स्माइल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। स्माइल प्लीज। Along with keep, you cannot use smile. You must make ing form. Keep smiling. Okay. After keep, we add ing form. Okay. Well done. So very simple statements you can put in this form. दरवाजा नहीं, दरवाजा वाला हो गया। विंडो खोलिए। खिड़की खोलिए। खिड़की खोलिए। ओपन द विंडो, दैट्स करेक्ट। ओपन द विंडो। खिड़की खोलिए, ओपन द विंडो। वेल डन। नाइस। So, imperative sentence is also clear to you, right? One more time, let's practice the one which we talked earlier. Let me know. तुम um, तुम मेरे बजाय उसके साथ रहना पसंद करते हो। पसंद करते हो। दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड बजाय, बजाय आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तुम मेरे बजाय उसके साथ रहना पसंद करते हो। फर्स्टली आप करेंगे इसमें, तुम उसके साथ रहना पसंद करते हो। उसके बाद बजाय मेरे। राइट। ऐसे आप थोड़ा तोड़ लीजिए तो अच्छा आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तुम उसके साथ रहना पसंद करते हो। यू लाइक हिम टू स्टे। नो, उल्टा सीधा कर दिया आपने विष्णु जी। वर्ड्स तो ठीक ठाक हैं, थोड़ा आपने इधर उधर किया है। यू लाइक टू लिव विद हर बिसाइड्स मी। संगम जी इज डूइंग दिस। यू लाइक टू बी विद हिम बिसाइड्स मी। ओके। अतुल जी इज डूइंग दिस। यू वुड रेदर स्टे विद हिम देन मी। हम्म। ये आपका सेंस क्या था मैं मान लूंगा, बट यहाँ पर मैंने एम्फेसाइज पहले ही कर दिया था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उस हिसाब से कीजिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। आपने जो किया है उसमें होगा कि तुम मेरे बजाय उसके साथ रहना पसंद करोगे, ये हो जाएगा। ठीक है। करोगे वाला सेंस हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे बजाय उसके साथ रहना पसंद करते हो। ओके, सो आई वुड लाइक टू प्रायोरिटाइज दीज आंसर्स। Like Savitri ji has also written this. You like to live with him besides me. That is also correct. Or Atul ji has written, you like to be with him besides me. That is also correct. Or you like to live with her. Her or him both can be used here, right? Because we do not know that is male or female. Besides me, बजाय. Got it? So you like to stay भी कर सकते थे आप यहाँ पर. You like to stay with him besides me, or you like to be with him besides me, or you like to live with him besides me. Yes, wants नहीं, want कर सकते हैं। रहना चाहते हो, सेंस के आधार पर सही हो जाएगा वैसे। You want to live with him rather than me. rather than me भी करेक्ट है, बट आपको मैंने ऑलरेडी बताया है besides। ठीक है। besides, besides का मतलब के बजाय। rather than भी करेक्ट है आपका। ऐसी इंस्टीड ऑफ भी होता है के बजाय। इंस्टीड ऑफ का भी कर लेंगे। सो एग्जांपल देता हूँ। इसी में से मान लीजिए, आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं चाय के बजाय कॉफी पीता हूँ, तो एक तो आप कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे, दोनों भी आप लिख लेंगे। आई टेक कॉफी बिसाइड्स टी, ये तो आपने किया था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई टेक कॉफी इंस्टीड ऑफ टी। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आई टेक कॉफी इन प्लेस ऑफ टी।
ओके। और एक केस होता है एक्सेप्ट वाला। एक्सेप्ट वाला भी बजाय के अर्थ में आता है, पर एक सेंस इसमें ये होता है कि आपको अब क्या कर रहे हैं आप, मतलब पहले आप चाय पीते थे और अब आपने क्या किया, कॉफी पिया। या फिर ऐसे वाले केस में मान लीजिए आपको चाय पीते हैं आप, लेकिन आपको चाय मिली नहीं तो आपने कॉफी से काम चला दिया। तो वहां पे बोल सकते हैं कि मैंने चाय के बजाय कॉफी पी, है ना। तो आई टुक टी एक्सेप्ट कॉफी, ऐसे ही बोल सकते हैं, छोड़कर। एक्सेप्ट वाला जनरली यूज होता है कि देखो छोड़कर। या फिर कोई चीज थी आपने, मतलब जनरली आदत आपकी है चाय पीने की, बट आपने कॉफी पी ली, तो एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सेंस वही रहता है हिंदी में, तो अर्थ वही रहेगा वैसे। चाहे हम रेदर देन का यूज कर रहे हैं, चाहे हम बिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, चाहे हम इन प्लेस का यूज कर रहे हैं के स्थान पर, या चाहे एक्सेप्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टीड ऑफ, रेदर देन, बिसाइड्स और एक्सेप्ट, ये सारे वर्ड लिख लीजिएगा। ये अपने आप में अल्टरनेटिव्स का काम कर सकते हैं। तो यू कैन नोट डाउन